So you're very stylish. I mean, I have clothes. Terrorists also wear clothes. Yeah, but terrorists, I only They wear want one. different clothes. Yeah, I only want one outfit in the Okay, talking about your character in this movie. He's a rich guy. He's a rich guy. He's cool. Love playing that. I don't know if I love anything. I like the other one as well. He's a rich guy. You know, he has lots of money to spend. He handpicks all of his stuff. You know, he's like that. We got it, right? We got it. So I'm sure. Yeah, I answered your question. Yeah, he did. If you want to know more about my character in general, They would love to know, and I'll also, be a part of the conversation. I think he's a guy who knows exactly what he wants and has all of the resources at his disposal to go and get it. All right. So with that, ladies and gentlemen, it's over to you. I know you have a lot of questions. So, Ji, please. Dinesh. Here. Dinesh, here. On your right. Hi. How was the experience directing Sushant and Kriti? Especially since Sushant is a method actor and it's your debut film. So. Actually, I tried to get the method out of him, for which we fed him a lot of chocolates. We distracted him with a lot of things. The first day, he's such a good student. He came with 6 pages of his entire character ka sketch, where it started, and then I said, "Isko chhod dete zero type." And my entire intent with this character was, I knew there's a little bit of Shiv in him, and then I realized it's a lot of Shiv in him actually. He just hides it, and I wanted to bring that out. And I think it was the thing is, we spent a lot of time together before we started the movie. So we were for 2 months workshopping, and I think they knew the script as well as I did. And it was a very collaborative process where when we were on set, we actually shot this film very quickly. I think we did about 60, 61 days. That's also because my elder sister is the production head and she feels that I've spent too much money. But it was very easy. It was a lot of fun. Hi, सुशांत, मेरा नाम आलोक है आपके लिफ्ट में। सवाल है, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हमने देखी, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी है आपकी कृति की? केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री होती है ऑन स्क्रीन लेकिन हाँ, हम लोग ये भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, दोनों दिल्ली से हैं और आप भी इंजीनियर हो? आप भी इंजीनियर हो? आप भी आ जाओ केमिस्ट्री तो और दिल्ली से हैं तो बड़ी सारी बातें कॉमन थी जो बातें कर सकते थे और ऐसे ही है केमिस्ट्री जैसी दिख रही है एक्चुअली। तो ऐसी है। कृति, इसकी लाइन है एवरीथिंग इज कनेक्टेड, तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? I really feel like everything, like I feel that I was meant to be a part of Raabta. And it's so strange that before I had signed Hero Panti, I had met him for something, generally, where he had narrated me the first scene of Raabta when the story was not developed. Like he was still working on it. And he had narrated me the first chocolate shop scene of this girl and boy and how they strangely feel connected. So it's like I had not even started films back then. And then after so many years doing this film, and that too in a random meeting, just feeling that connect with the script. So everything is connected. दिनेश, आपसे सवाल है कि खबरें थी, हमें तस्वीरें भी देखी थी कि दीपिका भी इसमें एक खास गीत करने वाली है। वो आपने लास्ट शॉट देखा, कोई एक बंदा था, वो एक्चुअली दीपिका है मेरे लिए। आई ऑलवेज कंसिडर दीपिका वेरी लकी फॉर मी। जब भी हमने कुछ साथ में काम किया है, वो मेरे लिए और उनके लिए वर्क किया है। सो जब मैंने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने एक्चुअली ये ओरिजिनल ट्रैक मेरी एक दूसरी पिक्चर से था जिसको हमने प्रीतम ने रिक्रिएट किया है। मैंने उन्हें एक बार मुझे फ़ोन किया था बहुत 4-5 साल पहले कि ये आपकी पिक्चर का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, बोला कि नो कंपल्शन, बट आप लकी हो मेरे लिए, तो राब्ता का टाइटल ट्रैक आप करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज शी सेड यस। उसके बाद कुछ नहीं, सीधा बुदापेस्ट था, शूट कर दिया। सो विद हर देयर इज अ कंफर्ट लेवल। भूषण जी, किस तरीके का म्यूजिक आप प्रोवाइड करने वाले हैं ऑडियंस के लिए इस फिल्म के द्वारा, क्योंकि दिनेश भी म्यूजिकली काफ़ी अच्छे सॉन्ग करते हैं? इसमें we have Pritam and as I told you there Dinesh and we share that music का connect, तो म्यूजिक तो जबरदस्त होना ही। हेलो सुशांत है, आशिया फ्रॉम म्यूजिक इंडिया। सुशांत, लास्ट फिल्म आपकी जो थी 100 CR क्रॉस की थी, इस फिल्म को लेके कुछ टेंशन है हल्का सा? सर वो 100 CR मुझे तो मिले नहीं तो
जो पैसे की बात है वो शूट के पहले ही मैं कर लेता हूँ और उसके बाद मैं पैसों के बारे में सोचता नहीं। तो मेरा काम जो होता है वो एंजॉय करना होता है जब मैं काम कर रहा होता हूँ और होप कर रहा होता है कि जब आप फिल्म देंगे तो आप भी एंजॉय करें, तो मैं वही कर रहा हूँ। हेलो, यहाँ इधर इधर, राइट राइट राइट। मेरा सवाल है कि ये जो राब्ता वाली फीलिंग है ये नेगेटिव में भी आती है कि ओनली पॉजिटिव में आती है? मतलब लव में ही आती है कि वो हेट वाला जो पिछली जिंदगी में होता है वो भी आता है? मुझे लगता है कि जो ग्रेटेस्ट विलन्स या द डार्केस्ट इमोशन प्यार से ही आता है। अभी जब प्यार टूटता है तो उसको आप कैसे लेते हैं डिफाइंस आप कौन है। सो अगर बहुत सारा प्यार नहीं हो तो बहुत सारी नफरत हो ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है नफरत भी प्यार से कनेक्टेड है। और मतलब अभी आप लोग स्टार्स हैं और आप लोग काफ़ी लोगों से मिलते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि ये जो राब्ता वाली फीलिंग है ये किसी को देख के आई हो? अगर आप लोग कोई कमेंट करना चाहते हो। See, like I said, Raabta is not necessarily कि romantic angle ही होना चाहिए, कोई भी तरह का connect होना चाहिए. I feel I had a Raabta with him also. Like I feel first time I met him, it didn't feel like the first time. We were chatting for like 2-3 hours, and he started narrating me one script, then other script like that. So I feel Raabta is like just a connection which can be friendly. It can be with your puppy. It can be with anything, anyone. So yeah, वो तो आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए जब शिव और सायरा, नॉट सुशांत एंड कृति, मेरे ऑफिस में पहली बार मिले उनका कुछ राब्ता था। ओके। और भूषण जी का संगीत हमेशा हिट रहा है, लाइक सनम के गाने अभी भी लोग लाइक करते हैं, तो इस फिल्म के संगीत को लेकर हम लोग कितनी उम्मीद कर सकते हैं? तो ये वही क्वेश्चन हमने आंसर किया ना, बहुत इंटरेस्टिंग म्यूज़िक है, प्रीतम का म्यूज़िक है और दिनेश और हमने मिलके बनाया है म्यूज़िक। एंड आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, एक गाने की तो झलक आपने सुनी होगी या ट्रेलर में। थैंक यू। It signifies something for which you'll have to watch the film. It's also there in the trailer. बहुत सारा खून भी है। कृति एंड सुशांत, आपसे सवाल है आपके सामने। आप दोनों पिछले जन्म की लव स्टोरी पे बिलीव करते हैं? पिछले जन्म की love story, I don't know, but I do believe in connections, and somewhere I think through the film I started believing in reincarnation a little. What was that book? Many Lives, Many Masters. So that's what, because Saira, my character, does eventually believe in it. So I started reading that, and whatever I read, it felt like it would be true. So I do believe that, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं और just देखकर या vibe से आपको वो अच्छा लगता है, आपको वो नहीं अच्छा लगता है. So I do believe somewhere you do have probably a past connection with that person, which is why you get that vibe. नहीं, मैं रीइंकार्नेशन पे बिलीव नहीं करता। मैं कभी जीते हुए इस लाइफ में भी बिलीव नहीं करता, तो मैं पूछ लेता हूँ आसपास रियल में हो रहा है कि नहीं, बट नहीं, मैं करता नहीं हूँ। बट ये वही मैंने बात बोली थी कि स्टोरी इतनी अच्छी है कि जब आप इसे देखेंगे और जब मैं सुन रहा था और कर रहा था तो आप इस पर बिलीव करना चाहेंगे। और बस ये पिक्चर एक्चुअली इज नॉट अ टिपिकल वो पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन काइंड ऑफ फिल्म। जब ये पिक्चर दोनों नज़रिए को देखती है, अगर आप बिलीव करते हैं और अगर आप नहीं बिलीव भी करते हैं। सो उसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी, बट ये दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू, बिकॉज मुझे लगता है दो ही टाइप के पीपल हैं, एक जो बिलीव करते हैं और नहीं बिलीव करते हैं। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को होपफुली हमारा इंटेंट रहा है कवर करना। आप दो लाइफ जी रहे हैं, आप जैसे फिल्म एक तरफ आप वामन हैं, शिव बने हैं, आप बनी हैं, और सेकेंड लाइफ में आप राजा रानी बने हैं। कौन सा कैरेक्टर आपने ज़्यादा एंजॉय किया, आसान रहा? आसान तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट तो तब लगेगा जब आपको काम करना पसंद नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप कुछ और चाहते हैं। मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं दूसरों को पैसे दे सकता हूँ, लेकिन बहुत ही फॉर्चुनेटली मुझे मिलता है। दोनों ही कैरेक्टर जो है बहुत ही ऑपोजिट हैं, और इसीलिए आई थिंक दिस इज द रीज़न व्हाई दे आर देयर इन द फिल्म। और क्योंकि ये दोनों इतने ऑपोजिट थे और फॉर्चुनेटली इन दोनों के बीच में मुझे 2-3 महीने का टाइम भी मिला था, तो दोनों में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि आप एक एक्सट्रीम तक जाते हैं, फिर दूसरे एक्सट्रीम तक जाते हैं। जब बदलाव ज़्यादा होता है तो फिर मज़ा ज़्यादा आता है।
Sushant, I think I think I kind of probably spent a little more time thinking about Saira. So, the present character. So, for me, I got very attached to her, I felt. And which is why I started really enjoying when I was playing Saira. And Saiba, which is the other character, on the other hand, I feel was because I didn't have any reference and it was another time, it was obviously a little more difficult to understand कि वो कैसी होगी, क्योंकि वो आज की लड़की नहीं थी. So that was a little more difficult, but enjoy, if you say, I enjoyed Saira much more. नॉर्मली राजा रानी को जब हम सोचते हैं उनके बारे में तो बहुत सारे हैवी कपड़े होते हैं, ढेर सारे गहने होते हैं, बट ये राजा रानी थोड़ी सी डिफरेंट है. आप क्या कहेंगे? कपड़े पसंद नहीं करते. ये थोड़े डिफरेंट टाइप के राजा थोड़े अलग हैं और एक्चुअली जब आप देखेंगे तो ये एक्चुअली जब वापस आएंगे कौन राजा है कौन रानी है ये सब बदलता है. आपके लिए खूब पिक्चर देखनी पड़ेगी वरना मैं बता दूंगा तो आप आएंगे नहीं.